First of all, good morning to all students. In the last classes, we discussed the various theoretical knowledge about the accountancy, accounting, and bookkeeping. Today, we will move to the new topic of class 11th accountancy, that is accounting standard. The name is accounting standard, that is standard for the accounting. When we are doing a whole accounting process, so there are basically few standards developed by a specific body that is known as Institute of Chartered Accountants of India. So in simple words, we can say accounting standard means the standard for accounting which are followed in the accounting process. Let's be discussed as accounting standard are written policy document covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. Accounting standard is an authoritative statement issued by ICI, a professional body of accounting in our country. The objective of accounting standard is to bring uniformity in different accounting policies in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statement. Secondly, the accounting standard provides a set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirements in addition to improving credibility of accounting data. Accounting standard enhance comparability of financial statement both intra and inter-enterprises. Such comparisons are very effective and widely used for assessment of firms' performance by the users of accounting. So what is accounting standard? Accounting standard is a written policy document covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement. It means when we are prepared a financial statement of any company, so accounting standard helps to recognize, measure, treatment of their transaction, presentation of these transaction, disclosure of these transaction in the financial statement. यानी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसको कैसे मेज़र करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसका डिस्क्लोज़र कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICI, यानी एक तरह का ये अथोराइजेशन स्टेटमेंट होता है, एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट होता है जिसे इस ICI इशू करती है. ICI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में इंडिया में एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में काम कर रही है अकाउंटिंग के फील्ड में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं एंड एलिमिनेट करते हैं नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए होता क्या है, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एम ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्मिटी ले आया जाए ताकि हम ईज़िली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर कर सकें. जैसे हम लोग बार बार बात करें, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है दो चीज़ों से कंपेयर करना, एक कंपनी का खुद की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना और एक कंपनी का किसी दूसरी फर्म के साथ, दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना होता है. एंड द सेकेंड advantage or objective of accounting standard is the accounting standard provide a set of standard accounting policies, यानी हम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कई तरह की पॉलिसी को फॉलो करते हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो अप करना चाहिए जिससे उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, सो इन सच केस वी कैन से accounting standard provides the standard for accounting process and it helps to the recognize, measure, treatment and presentation as well as disclosure of accounting transaction in financial statement. Accounting standard is made by the authorized body that is a professional body of accounting in our country, that is ICI, the Institute of Chartered Account of India. The objective of accounting standard is uniformity and credibility. With the help of accounting standard, we provide the
two important benefits to the accounting users, that is uniformity in the financial statement as well as credibility in the financial statement. Let's we discuss the next topic, that is need for accounting standard. accounting standard की नीड क्या है? देखिए, अकाउंटिंग यूज़र्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड क्यों होती है? क्योंकि दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र, उनकी डिफरेंट नीड होती है. जैसे ओनर्स की नीड होती है कि वो अपने बिज़नेस के ग्रोथ के बारे में स्टडी कर सके. इन्वेस्टर की ये नीड होती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले रिटर्न पे डिस्कस कर सके. क्रेडिटर की ये नीड होती है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो ये जानता है कि जिस फॉर्म में वो पैसा लगा रहा है, जिस फॉर्म में वो पैसा उधार दे रहा है, वो पैसा उसको रिकवर होगा कि नहीं होगा. सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, यूज़र्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन में दो क्वालिटीज़ आती हैं, एक कंपेरेबिलिटी और एक क्रेडिबिलिटी. विद द हेल्प ऑफ क्रेडिबिलिटी जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्रेडिबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, एंड उन डाटास को, उन इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर के पास पैसे होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास कई ऑप्शन होते हैं कि वो एक्स कंपनी में पैसा लगाए, वाई कंपनी में पैसा लगाए कि जेड कंपनी में उसके पैसा लगाए. इसके लिए वो एक्स वाई जेड तीनों कंपनी के बीच में कंपेयर करना चाहेगा. लेकिन कंपेयर कब होगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपेरेबिलिटी की क्वालिटीज़ होंगी. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होगा, यानी वी कैन नॉट कंपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अदर कंपनी, सो वी कैन नॉट बी जज कि विच कंपनी इज़ बेटर from among company that is X, Y and Z. So with the help of accounting standard, जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी की क्वालिटीज़ को मिक्सअप करते हैं. सो accounting extend information to various users of information. Accounting information can serve the interest of different user only if it possess uniformity and full disclosure of relevant information. There can be alternate accounting treatment and valuation norms which may be used by any business entity. Accounting standards facilitate the scope of those alternatives which fulfill the basic qualitative characteristics of true and fair financial statement. यानी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए ही बनाया गया है ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, हमने कौन कौन सी क्वालिटीज़ पढ़ी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस. सो दीज काइंड ऑफ क्वालिटी must be present in the accounting information. So with the help of accounting standard, we develop accounting information with the all types of qualitative characteristic of accounting information. Now we move to the benefits of accounting standard. Accounting standard helps in eliminating variation in accounting treatment to prepare financial statement. यानी जो वेरिएशंस होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प से, वो वेरिएशन को दूर किया जाता है. यानी एक कंपनी कोई दूसरा मेथड फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी कोई दूसरा मेथड फॉलो कर रही है. यहाँ मेथड का मतलब है फॉर कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के कई तरीके हैं. तो एक कंपनी दूसरी मेथड को फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरे मेथड को फॉलो कर रही है, तो उन दोनों के बीच में वेरिएशन आएगा. क्या हम दोनों की कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे? सर नहीं कंपेयर कर पाएंगे. यानी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम सबको एक तरह का अकाउंटिंग मेथड प्रोवाइड करेंगे जिसकी हेल्प से उनके बीच में ईजिली कंपेयर किया जा सके. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड may call for disclosure of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for the general public, investor and creators. विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी लोगों को गाइड किया जाता है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के साथ. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो सिर्फ इंटरनल यूज़र्स के साथ आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल यूज़र्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं. लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सफिशिएंट नेचर में होनी चाहिए, यानी पर्याप्त होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिक के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ सब शेयर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन लॉस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. लेकिन लॉज ने तो एक सर्टेन लिमिट में ही डिसीजन दिया होगा.
सो अगर हम बेसिकली कहें तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी प्रोवाइड अ सफिशिएंट एंड एडिक्वेट नॉलेज to the useful of the general public, investor and creditors. With the help of accounting standard facilitate comparability between financial statement of inter and intra companies. यानी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंपनी जो होती है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर खुद के साथ भी कर सकती है और दूसरी कंपनी के साथ. इंटर फर्म एनालिसिस का मतलब होता है कि अपने पास परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन करना. नाउ विल मूव टू द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देखिए, द फर्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन द डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी कभी कुछ पॉलिसीज़ एंड मेथड ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसमें अकाउंटेंट को ये चूज़ करना होता है कि उसे कौन सी पॉलिसी अपनी अकाउंटिंग बुक्स में इम्प्लीमेंट करना है. सो वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि अकाउंटेंट कौन सी मेथड को फॉलो करेंगे. इट इज़ रिजिडली फॉलोड इन फॉल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यानी जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज़ जस्ट लाइक अ रूल. सो उसको हम जब फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिजिड नेचर की मिल जाती है. द थर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड एन द स्टैच्यू. द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिविलिंग स्टेटस. यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी कंपनी की इमेज को ओवरराइड नहीं करता, और उन सारे स्टैंडर्ड को आपको एक लिमिट तक परमिट करना ही पड़ता है. तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट भी इस चीज़ को लेकर थोड़े से डरे हुए होते हैं. इस पर हम लोग देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बताई है कि वो टाइम पे ही आएगा. नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Except the purely charitable organization which does not have any commercial, industrial and business activity, accounting standard is applicable to. So, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया. हमारे पूरे इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड होता है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउ नहीं होता? ओनली फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन which do not have any commercial in an industrial business activity. यानी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, यानी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो ना तो इंडस्ट्रियल बिजनेस करता हो ना कॉमर्शियल ना बिजनेस, उनको छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप. अकेला अगर इंसान काम करेगा तो भी उसे एएस को फॉलो करना है. पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर्स की बिजनेस है तो वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. सोसाइटी, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, तो इन सब जगह हमें क्या करना पड़ेगा? 8 जगह आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. ये कोई 9 and 10 टॉपिक नहीं है, ये गलती से एनसीईआरटी की बुक में मेंशन हो गया है. ये ओनली 8 एरियाज वेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम? यू नो वेरी वेल. हमारे इंडिया में आफ्टर 1991 एक पॉलिसी आई, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब ये था कि अब फॉरेन से कंपनीज भी आके हमारे इंडिया में बिजनेस करेंगी. वो जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगी. हमारी जो कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी वो किसको फॉलो करके बनाएंगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में आईसीएआई ड्रॉ करता है. उनके यहाँ का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा वो वहाँ का जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होगा वो बनाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. सो क्या इंडियन कंपनी का कंपैरिजन फॉरेन कंपनी के साथ हो पाएगा? सर हो पाएगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. पहली प्रॉब्लम होगी कि इंडियन कंपनीज जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाएगी. ओके, बट फॉरेन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, लेकिन वो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी, वो अपने देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी. सो
दो कंपनीज जहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो वहाँ ग्लोबल लेवल पे कंपनीज़ के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो उसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो उन सारी कंपनीज़ को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए एक सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, इससे क्या होगा कि कंपनी ईजिली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपेयर और रिलायबल कर सकती है। नाउ what is the need of international financial reporting system? So you know, the first is the important economic decision made on the basis of financial statement. In order to avoid manipulation of figure in the financial accounts, there is the need of consistent way of deciding which elements require recognition, measurement, and how information is presented in the financial statement. Hence IFRS help to prevent material manipulation of an financial statement. IFRS helps in global harmonization. Unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of accounting rules and regulations are prevalent in each country. This will restrict uniformity and comparability of financial statement. Hence IFRS promotes global standard for each business growth. ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो दूसरा और पहला टर्म एकदम क्लियर है। पहला टर्म एकदम सेम एज एएस की तरह है कि विद द IFRS हमें इंटरनेशनल लेवल पे ये फाइंड आउट करने को मिलता है कि हमें ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज, मेज़र, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब पता चलता है। एंड विद द हेल्प ऑफ IFRS ग्लोबल हार्मोनाइजेशन में ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि डिफरेंट कंट्री विल अप्लाई डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन are prevailing in each countries. This will restrict uniformity and comparability of financial statement. So global level पे अगर बात करें तो international financial reporting system is very important. It facilitate global investment. The convergence of financial reporting and accounting standard is valuable process that contributes to the free flow of global investment and achievable sustainable benefits for all capital market stakeholder. जैसे अगर एक इन्वेस्टर है इंडिया का एक इन्वेस्टर है और एक इंडियन कंपनी उसके सामने एक फॉरेन कंपनी है। सिंपल से समझिएगा इस चीज़ को। इंडिया का एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसे हैं और उसे डिसाइड करना है कि वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करे कि फॉरेन कंपनी में। तो आप कहोगे अरे वो तो इंडियन है, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इन्वेस्टर है, वो उसका डिसीज़न है, वो रैशनल हो कि उस चीज़ को डिसीज़न लेगा। सो वो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में कंपेयर करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ IFRS, क्योंकि हमने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया है जिसकी हेल्प से ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली इस कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। सो यू नो वेरी वेल कि जब हम IFRS डेवलप किए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सो विद द हेल्प ऑफ IFRS Indian investment or other foreign investors can easily compare the financial statement of different companies who worked in the different countries. So in this situation he can obtain a sufficient knowledge about those companies and take a great decision for himself. Okay, so now to uniform accounting policies and procedure, almost all countries have agreed to apply IFRS. अच्छा, ये भी हमें क्लियर हो गया कि सारी कंट्रीज IFRS को एग्री कर रही, बट द नेम ऑफ दिस IFRS हैव बीन कन्वर्जेंट एज IND AS. In substance, IND AS is not different from IFRS. IND AS is accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs and has wide range of coverage as compared to existing accounting standard. The list of IND AS and existing standard for comparative analysis is given. So जो IND AS है ये हेल्प करती है इन IFRS समरी में अगर बताएं, और AS जो है वो सिर्फ हमारे देश की कंपनीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है। यानी अगर हम सिर्फ AS की बात करें तो दिस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IND AS को हम लोग क्या बोलते हैं, IFRS लिखा है ना। IFRS हैज़ बिन
कन्वर्जेंट एज इन एस। सो IFRS जो है वो IND-AS से डिफरेंट नहीं है, यानी जो ग्लोबल लेवल पे कंपनीज वर्क कर रही हैं, हमारे इंडियन कंपनीज वर्क कर रही हैं, उन्हें IND-AS, जिसे हम लोग बोल सकते हैं IND को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडिया AS, तो इंडियन AS को फॉलो करना पड़ता है। और जो हमारे देश की नॉर्मली कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर वर्क नहीं करी, वो सिर्फ AS डेवलप करके भी काम कर सकती है। तो दे आर बेसिकली लिस्ट ऑफ द इंडियन AS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 से लेकर टोटल 108 इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड इधर आप देखेंगे तो AS की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 4, 7 ऐसे करके सारे स्टैंडर्ड दिए हैं। ये सामने दिया हुआ है कि ये आपको हेल्प करेगा। जैसे अगर हम बात करें इंडिया का AS IFRS, इंड AS को हम लोग इंड AS से बार बार बोलेंगे, तो इसको आप IFRS की बात करते हैं। IFRS का जो सेकेंड IFRS है, विच आर इक्वल टू द AS1, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 is valuation of inventories, and IFRS 2, that is inventories. India IND-AS, that is IFRS 7 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वेयर इज AS थर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट गिवन है। ओके, सो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की गई है। इसमें से कुछ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, accounting standard first is related to the disclosure of accounting policies. Accounting standard 2 related to the valuation of inventories. AS3 is related to the cash flow statement. AS10 accounting for fixed assets. AS6 depreciation accounting. AS9 revenue recognition. AS15 employee benefits. AS20 earning per share, AS30 intangible assets, AS14 accounting for amalgamation, AS17 segment reporting। तो AS की इतने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है AS17 इज़ रिलेटेड टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS10 इज़ रिलेटेड टू द फिक्स एसेट्स, AS6 डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। ओके, नाउ वी मूव टू द IFRS में भी ऐसे ही कुछ IFRS आपको याद होने चाहिए। जैसे IFRS 1 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AS2 इन्वेंट्रीज, AS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, that is IFRS, and IFRS 12 income tax, IFRS lease 17, 19 for employee benefits, and 23 for the borrowing cost IFRS, and 33 is earning per share, 36 impairment of assets, 38 is intangible assets, and business combination IFRS 103, and operating segment, that is 108। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे हम लोगों ने बात की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, हमारे देश में डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं, डिफरेंट फर्म्स काम कर रही हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट में वर्क कर रही हैं, डिफरेंट एरिया में वर्क कर रही हैं। उनका एरिया ऑफ फील्ड भी अलग है, उनका प्रोडक्ट का नेचर भी अलग है, उनका स्कोप भी अलग है, फील्ड भी अलग है। तो इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो इम्पॉर्टेंट बात लाना, यूनिफॉर्मिटी लानी, ताकि वो कंपेयर हो सके वो डाटा, एज वेल एज क्रेडिबिलिटी लाना, रिलायबल लाना अकाउंटिंग डाटास को। सो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स द स्टैंडर्ड फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस गिवन बाय द एथराइज बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल बॉडी इन आवर कंट्री, विच हेल्प्स टू द extend in
which helps to the extend information to various user of information, and it helps to the uh, eliminating variation accounting treatment, and it useful for the accounting users, that is internal user and external user. With the help of accounting standard, we provide a sufficient and adequate knowledge to the useful users of the accounting information. And with the help of accounting standard, a company may uh, easily compare his performance with their old performance, past performance, as well as with the other companies. Some of the limitation of accounting standard, that is the different methods and policies given by this accounting standard. So there must be a confusion between which method is suitable or adoptable by the business firm. And accounting standard has a rigid nature because it is just like a rule, so it cannot be flexible, it cannot be changeable time to time. So accounting standard एक तरह का rigid nature होता है. And next one is applicability की बात करें तो accounting standard is applicable all types of business organization, that is sole proprietorship, partnership, society, trust, Hindu and divided family, association of person, cooperative society, companies, except charitable organization which do not have any commercial and industrial business activity. And now we will discuss the important topic, that's international financial reporting system. You know very well, after the 1991 LPG policy implemented in our country, that is liberalization, privatization and globalization, which is also known as the new economic policy. So in this situation, many foreign companies are welcome in our countries and doing a business. So in this situation, हमारी देश की कंपनीज़ और उनकी देश की कंपनीज़ के बीच में कंपेरेबिलिटी होना, ट्रांसपेरेंसी होना, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना, रिलेवेंसी होना, इन सारे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के होने के लिए IFRS इम्प्लीमेंट किया गया है. यानी विद द हेल्प ऑफ IFRS वी कैन ईजली कंपेयर द डाटा और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कंपनी एज वेल एज विद द फॉरेन कंपनीज. It helps to the take a decision for the investor and creator कि which kind of company is beneficial for their business activities. With the help of IFRS, we implement a certain accounting rules and regulation which helps to control over the foreign companies. IFRS helps to the provide the basic knowledge about the recognition, measurement, presentation of the financial statement, and it helps to the global harmonization and helps to the uniformity and comparability of financial statement of different countries work in our countries. And there are basically we can know the IFRS has been convergent and Ind AS, and Ind AS is not different from IFRS. So when we are talking about the India AS, IND AS, so it will be known as the IFRS, which must be followed by the international company, multinational companies, to adopt the comparability and uniformity quality in their financial statement. And for the other companies, ICAI also framed a accounting standard for their domestic company, which helps to reliable, uniformability, relevance and understandability in the accounting data. So I hope आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट आर द नीड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, benefits of accounting standard, limitation of accounting standard. Thereafter we will discuss international financial reporting system. In the IFRS we discuss what is the need of IFRS, what are the merit and demerit, as well as the few accounting standard developed by ICAI and IFRS. Also we studied a different IFRS given by the
प्रोफेशनल बॉडी इन आवर कंट्री. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.